میری طرف سے جانی ٹی وی دیکھنے والے سبھی معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو آج ہمارا سفر ہے جنوب مشرقی یورپ کے ایک اسلامی ملک کوسوو کا۔ کوسوو جو خود کو آزاد جمہوریہ کہتا ہے، جسے آج دنیا کے 115 ممالک آزاد تسلیم کر چکے ہیں۔ ایک ایسا ملک ہے جس کو آج تک سربیا نے تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی بھارت نے تسلیم کیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ بھارت اس آزاد ریاست کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا؟ کوسوو کی تاریخ اور دلچسپ و عجیب حقائق سے بھری ہوئی یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آخر بھارت کوسوو کو تسلیم کیوں نہیں کرتا ہے۔ کوسوو جسے کوسوا بھی کہا جاتا ہے، بوسنیا و ہرزیگوینیا اور البانیا کے بعد یورپ کا تیسرا اسلامی ملک ہے۔ آج اس ملک کو آزادی ملے ہوئے 11 سال بیت چکے ہیں، مگر سربیا ہے جو اس ملک کو اپنا کنٹرول نہ ہونے کے باوجود بھی تسلیم نہیں کرتا ہے۔ کوسوو کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے میری گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل جانی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ سیر و سیاحت اور تاریخ پر بنائی گئی کوئی بھی ویڈیو آپ دوستوں سے کہیں مس نہ ہو جائے۔ دوستو ماضی میں غازیمستان کے نام سے جانا جانے والا یہ خطہ یونانی لوگوں کی آبادکاری سے آج سے 4000 سال پہلے آباد ہوا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور گزرتا یہاں تک آن پہنچا کہ اس علاقے پر رومی سلطنت قائم ہو گئی۔ رومیوں کے بعد بازنطینی سلطنت کا یہاں پر سکہ چلنے لگا۔ 12ویں صدی کے اواخر میں یا 13ویں صدی کے آغاز میں کوسوو کا یہ ملک ایک سربین ریاست راسکیا کے زیر انتظام آ گیا۔ 1389 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی سالوں میں سربیا سے کوسوو نام کے میدان میں ایک عظیم جنگ ہوئی۔ اس جنگ کو آج بیٹل آف کوسوو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح کے بعد اسلام بڑی تیزی کے ساتھ اس علاقے میں پھیلنے لگا۔ بازنطینیوں کے دور حکومت میں یہ علاقہ، خاص کر کوسوو کا علاقہ، البانوی نژاد لوگوں سے بھر چکا تھا۔ عثمانیوں کی طرف سے جب یہاں مسلمان حکمران اور قاضی مقرر کیے گئے، حکمرانوں کا مسلمانوں اور اقلیتوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک، قاضیوں کے منصفانہ فیصلے دیکھ کر مقامی آبادی مسلمان ہونے لگی۔ 16ویں صدی کے وسط سے پہلے ہی تقریباً ساری کی ساری آبادی یہاں مسلمان ہو چکی تھی، ماسوائے چند ایک کے۔ غیر مسلمانوں کا مسلمان ہونے کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ جزیہ جو غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا اور مسلمانوں سے نہیں، تو کئی لوگوں نے صرف اسی سوچ میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ 1877 میں ترکوں نے انتظامی تقسیم کے لیے بلکان کو ولایت کوسوو کے نام سے نواز دیا۔ کوسوو کے علاوہ اس انتظامی تقسیم میں مونٹی نیگرو، شمالی مقدونیہ اور سربیا شامل تھے۔ ولایت کے اس دور میں کوسوو نے بے انتہا ترقی کی۔ 1876 میں سربیا اور عثمانیوں کے درمیان ایک جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں عثمانیوں کی طرف سے 1 لاکھ سے زائد سپاہیوں نے حصہ لیا، جبکہ سربیا کی طرف سے اس جنگ میں 60,000 سپاہی تھے۔ ان 60,000 میں سے 30,000 مسلمان تھے، جبکہ باقی روسی افواج بھی شامل تھی۔ سربیا کی اس پونے 2 سال تک جاری رہنے والی جنگ کو سربیا کی جنگ آزادی بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے پہلے مرحلے میں عثمانی فاتح قرار پائے تھے، مگر جب سربیا کی طرف سے مسلم افواج کو لڑنے کے لیے فرنٹ پر لایا گیا تو عثمانیوں نے وہ مزاحمت نہ کی جو جنگ کے پہلے حصے میں کی تھی، اور یوں اس بار سربیا فاتح قرار پایا۔ اب ایک طرف سوویت یونین کا آغاز ہو چکا تھا اور دوسری طرف یوگوسلاویہ کا قیام عمل میں لایا جا رہا تھا۔ 90 کی دہائی میں دونوں اتحاد ختم ہوئے۔ 14 ممالک کو روسی انضمام سے آزادی نصیب ہوئی، جبکہ یوگوسلاویہ کے خاتمے کے بعد 7 ملک وجود میں آئے تھے۔ کرویشیا، سلووینیا اور ہرزیگوینیا اور مقدونیہ کا قیام 1991 میں عمل میں لایا گیا تھا، جبکہ کچھ ممالک کا اتحاد نا اتحادی کی صورت میں اگلے کئی سالوں تک جاری بھی رہا، مگر پھر وہ بھی الگ ہو گئے۔ ان آزاد ہونے والے ممالک میں 2 ملک، ایک کوسوو اور دوسرا بوسنیا، بہت ہی مظلوم ملک ہیں، جہاں مسیحی مسلح افراد نے مسلمانوں کا جینا دوبار کر رکھا تھا تاکہ کسی نہ کسی طرح یا تو یہ مسلمان علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں یا یہ اپنا مذہب تبدیل کر لیں۔ پھر 10 جون 1999 کو اقوام متحدہ کے امن مشن نے ان ممالک کا رخ کیا۔ اقوام متحدہ کے امن مشن کی آپ تاریخ نکال کر دیکھ لیجئے۔ اس امن مشن میں سب سے زیادہ نام پاکستان آرمی کا ہی لیا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت دنیا کے 10 سے زائد ایسے ممالک ہیں جہاں پر امن صرف اور صرف پاکستانی فوج کی کوششوں سے لایا جا چکا ہے۔
बोस्निया और कोसोवो भी इन्हीं ममालिक में से एक हैं। कोसोवो में आज भी अक़वाम मुत्तहिदा का अमन मिशन मौजूद है। 1991 में पहली बार इस मुल्क में आज़ादी के लिए रेफरेंडम हुआ था। 99.98% की शरह से इस रेफरेंडम का फैसला आज़ादी के हक में आया था। सिर्फ 164 ऐसे लोग थे जो आज़ादी नहीं चाहते थे, जबकि आज़ादी की हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों की तादाद उस वक्त 9,13,705 अफराद थी। 1991 में आज़ादी तो ना मिल सकी, अलबत्ता 17 फरवरी 2008 को दुनिया के कई ममालिक की तरफ से कोसोवो की आज़ादी को तस्लीम कर लिया गया। तमाम के तमाम मुस्लिम ममालिक, यूरोपीय यूनियन के 28 में से 23 ममालिक, जबकि दीगर 10 मजीद ममालिक भी कोसोवो की आज़ादी को तस्लीम कर चुके हैं। वैसे तो रूस कोसोवो की आज़ादी को तस्लीम नहीं करता, क्योंकि अगर रूस ऐसा करता है तो रूस के ज़ेरे तसल्लुत चंद जमहूरियाओं से रूस के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो जाएंगी। 2014 में जब रूस ने क्रीमिया की आज़ादी को तस्लीम कर लिया तो रूस ने कोसोवो को तस्लीम करने का भी इजहार किया था, मगर आज तक हतमी फैसला नहीं हो सका। जबकि भारत के सर्बिया के साथ अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से भारत कोसोवो की आज़ादी को तस्लीम नहीं करता। अगर भारत ऐसा करता है तो भारत को कश्मीर, सिक्किम और नागालैंड जैसी रियासतों से हाथ धोना पड़ेगा। इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा में जब भी वोट्स की जरूरत पड़ती है, सर्बिया भारत को और भारत सर्बिया को ही सपोर्ट करता है। 10,908 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ यह मुल्क इस वक्त दुनिया का 162वां बड़ा मुल्क है। कोसोवो बल्कान रीजन के वस्त में वाक़े एक ज़मीनबंद मुल्क है, जो अपनी सरहदी हदूद शुमाल और मशरक की जानब से सर्बिया, जुनूब मशरकी सिम से मकदूनिया, जुनूब मगरब की जानब से अल्बानिया और मगरब की जानब से मोंटीनेग्रो से मिलाता है। कोसोवो की मौजूदा आबादी 19,58,000 अफराद है। आबादी के हवाले से इस मुल्क का दुनिया भर में 147वां नंबर है। इस मुल्क के अगर मज़हब की बात की जाए तो मुल्क की 96% आबादी मुसलमान है, 2% रोमन कैथोलिक को मानने वाले, 1.5% ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स को मानने वाले, जबकि 0.5% दूसरे मज़ाहब के पूजने वाले यहाँ बसते हैं। इंसानों की औसतन उम्र इस मुल्क में 76.7 साल है। तालीम की शरह इस मुल्क में 97.7% है। इस मुल्क में तालीम की तरफ तवज्जो आज की हुकूमत ने ही नहीं दी, बल्कि सल्तनत उस्मानिया के दौरे हुकूमत में भी तालीम की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाती थी। आज भी उस्मानियों के कायम करदा स्कूल्स इस मुल्क में मौजूद हैं। प्रिस्टीना इस मुल्क का दारुल हुकूमत और मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की आबादी 2,05,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि रकबा 500 मरबा किलोमीटर से जायद है। इस शहर में आबादी का वसाव 400 कबल मसीह में हुआ था। रूमियों के दौरे हुकूमत से आज तक इस शहर को कई बार कई हुकूमतों का दारुल हुकूमत माना जा चुका है। दोस्तों, कोसोवो की ज्यादातर आबादी अल्बानवी निजाद लोगों की है। सिर्फ सर्बिया की सरहद के साथ 3 से 4 गांव हैं, जहां 5 से 6,000 अफराद बसते हैं। सवाए इन सर्ब के दूसरा कोई भी सर्बिया के साथ इलाक़ नहीं चाहता। साल 2017 में सर्बिया ने कोसोवो पर हमला करने का एक अनोखा तरीका अपनाया। सर्बिया ने कोसोवो जाने वाली एक ट्रेन पर सर्बिया का परचम बनाकर साथ ये तहरीर कर दिया कि कोसोवो इज सर्बिया। जब ट्रेन कोसोवो में दाखिल होने लगी तो सर्बिया को यकीन था कि कोसोवो इस ट्रेन के साथ कुछ गलत करेगा। दोनों ममालिक की अफवाज आमने सामने आ गई। बस जरा सी कोताही एक बड़ी जंग का पेश खैमा साबित होने वाली थी कि कोसोवो के लोगों और हुकूमत ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए इस ट्रेन के साथ किसी किस्म की कोई छेड़खानी नहीं की। मार्च 2018 में कोसोवो पुलिस ने एक सर्बियन सियासतदान को कोसोवो की हदूद में गैर कानूनी तरीके से आने पर गिरफ्तार कर लिया। चंद माह इस तनाज़े ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली, मगर फिर यह मामला ठंडा हो गया। +383 कोसोवो का कॉलिंग कोड और .ko इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। कोसोवो अभी तक यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं बना, मगर जल्द यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनने की तवक्को की जाती है। साल 2002 से इस मुल्क में यूरो करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है और यूरो करेंसी को ही इस मुल्क की कौमी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कोसोवो में पिछले हजारों सालों से राज करने वाली मुख्तलिफ सल्तनतों के अरूजो ज़वाल की कहानियां आसार की सूरत में यहाँ पर मिलती हैं।
40,000 के करीब गैर मुल्की सियाह हर साल इस मुल्क में सैरो सियाहत की गर्ज से आ रहे हैं। जैसे ही इस मुल्क के हालात मजीद मुस्तहकम हुए, सियाहों की तादाद में यकीनी तौर पर इजाफा देखने को मिलेगा। हमसाया ममालिक के लोग मासवाए सर्बिया के अपने नेशनल कार्ड के साथ इस मुल्क में दाखिल हो सकते हैं। कोसोवो का अपना पासपोर्ट है। कोसोवो के पासपोर्ट के हामिल शहरी दुनिया के 48 ममालिक में बगैर वीज़ा जाने की सलाहियत रखते हैं। आलमी सतह पर कोसोवार पासपोर्ट को 79वें नंबर पर शुमार किया जाता है। अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप इस मुल्क में जाने का सोच रहे हैं तो आपको लाहौर में मौजूद कोसोवो के कौंसुलेट ऑफिस से कोसोवो का वीज़ा हासिल करना होगा। US, UK, कनाडा और यूरोपीय ममालिक समेत खलीजी ममालिक की शहरियत रखने वाले पाकिस्तानी इस मुल्क में बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। अगर आपके पासपोर्ट पर मल्टी एंट्री शेंजन वीज़ा लगा हुआ है तब भी आप इस मुल्क में 15 दिनों के लिए बगैर वीज़ा जाने की सलाहियत रखते हैं। कोसोवो पाकिस्तान से 4,481 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है, जबकि वक्त के लिहाज से पाकिस्तान इस मुल्क से 3 घंटे आगे है। कोसोवो की कौमी खेल का एजाज किसी भी खेल को हासिल नहीं है, अलबत्ता फुटबॉल इस मुल्क की सबसे पसंदीदा खेल मानी जाती है। फुटबॉल के अलावा बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, जूडो, कराटे, हैंडबॉल और ओलंपिक्स की कई एक खेलें इस मुल्क में सबसे ज्यादा खेली जाती हैं। 2008 में जब कोसोवो ने सर्बिया से आज़ादी हासिल की तो इस मुल्क के कौमी परचम के लिए कई सवालात उठाए गए। ऐसे में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक इंटरनेशनल कंपटीशन मुनक्कद करवाया जिसमें 993 एंट्रीज हुई। ऐसे में मोहम्मद इब्राहिमी का दिया हुआ ये परचम सबको पसंद आ गया। उसने इस परचम पर मुल्क में बसने वाले 6 नस्ली ग्रोहों की निशानदेही के लिए परचम पर 6 स्टार बनाए, परचम को रंग नीला दिया और साथ में मुल्क का नक्शा बना दिया, जो सबको पसंद आया और इसे कौमी परचम मान लिया गया। कोसोवो के अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो इस मुल्क पर 500 सालों तक सल्तनत उस्मानिया का परचम लहराता रहा है। कोसोवो का नाम सर्बिया और कोसोवो में मौजूद एक ऐसे खित्ते के नाम से लिया गया है जिसे कोसोवो फील्ड कहा जाता था। सर्बियन जुबान में इसका मतलब ब्लैक बर्ड्स के रहने की जगह है। मुसलमानों और क्रिश्चियन के सभी त्यौहार पर इस मुल्क में छुट्टी मनाई जाती है। इस मुल्क की ज्यादातर आबादी सुन्नी मुस्लिम है, थोड़ी सी तादाद शिया मुस्लिम की भी यहाँ पर आबाद है, जबकि इस मुल्क में मुसलमानों की शराब से नफरत नहीं बल्कि लगाव नजर आता है। अल्बेनिया और कोसोवो 2 ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ शराब को नॉर्मली पिया जाता है। जनूबी सूडान जिसे 2011 में आज़ादी मिली थी और कोसोवो जिसे 2008 में, इस वक्त दुनिया के सबसे बाद में आज़ाद होने वाले मुल्क हैं। इस मुल्क का 40% हिस्सा जंगलात से घिरा हुआ है। अल्बेनियन और सर्बियन दोनों इस मुल्क की कौमी और सरकारी जुबानों का दर्जा रखती हैं, जबकि चंद एक मजीद जुबानों का इस्तेमाल भी इस मुल्क में हो रहा है। इस मुल्क की आधे से ज़ायद आबादी देहात में रहती है। ज़राअत इस मुल्क की मईशत को सहारा देने का एक बड़ा जरिया है। तकरीबन मुल्क के 50% हिस्से पर काश्तकारी होती है। इस मुल्क की 70% से ज़ायद आबादी 35 साल से कम उम्र है। यही वजह है कि इसे यूरोप का नौजवान मुल्क भी कहा जाता है। यूरोप में मोल्दोवा के बाद कोसोवो गरीब मुल्क तस्वर किया जाता है। इस मुल्क की कुल GDP 22.1 बिलियन $, है, जबकि फीकस मजमूई आमदनी $12,122 है। दोस्तों, ये थी कोसोवो मुल्क के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो हबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप अपनी तजावीज़ का इजहार बजरिया कमेंट हमसे लाजमी किया करें ताकि हम अगली आने वाली हर वीडियो में आपकी ख्वाहिशात को मद्देनजर रख सकें। आप दोस्तों से मुलाकात होगी ऐसे ही किसी मालूमाती वीडियो के जरिए। तब तक के लिए अपने इस दोस्त मोहम्मद नबील को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।